Hmm. Let us continue from the point where we stopped last. We were discussing about how to find the natural frequency of systems by developing their differential equations. So what you see here on the screen, let me write it once again. If you have a variable y, and if you want to see whether a system is executing simple harmonic motion in y, then you develop the differential equation. It should be of this form: d2y by dt square plus the square of natural frequency would be sitting here, and y will come equal to 0. If your variable is x, then the differential equation should look like this. If your variable is theta, some rotational variable, then your differential equation will look like this. So if the motion is SHM, then your differential equation will look like this. If your differential equation of motion does not look like this, then it is some motion which is causing the body to change its position with respect to time. So it might be moving, it might be even oscillating, but it will not be simple harmonic motion. This is what we are trying to say here. For a body to execute simple harmonic motion, the format of its differential equation of motion must compulsorily conform with these formats. Now, depending on the variable of displacement being x, y, theta, your differential equations will vary like this. So this we had already covered. Then we had developed the differential equation of motion for a spring mass system. We took a random position, we took the equilibrium condition, the entire thing was explained. You can revisit the lecture which I have sent you as a recording already. And eventually what we did was we found that the differential equation of motion of the mass moving up and down, vibrating up and down in this system comes out to be something like this. You chose the displacement variable to be y, so your differential equation came out as d2y by dt square plus k by m into y equal to 0. Now, as soon as you looked at this differential equation, you went and checked whether this is matching with the differential equation for standard motion of SHM in y. So this is of this form. So now you see that everything is closely matching. d2y by dt square, d2y by dt square is present. Y is required, y is present. Plus sign is required, not even a minus sign can be administered here. And you see that you also have a plus sign here. So, okay, and on the right hand side, you have 0 also. So everything is matching. So now you conclude that yes, the motion of my spring mass system is simple harmonic. And not only that, you also saw that since in this position, the square of your natural frequency is supposed to sit. So that means this k by m must be equal to omega n square. So you wrote omega n square is equal to k by m, and this was the answer that you were seeking altogether. So omega n is equal to under root k by m. So this is a very important relationship that we have derived. And now you know also how to derive this equation. Okay. Then we had started working on finding the time period of a simple pendulum. So you took the mean position once again. You took a random position. These are the standard steps that you have to undertake every time you try to find out the differential equation and the value of omega n.
So you said that, okay, I randomly choose the pendulum to be at this position and I am measuring my displacement theta in the counterclockwise direction like this. So as soon as you declare your position, your random position, okay, length of pendulum is L. Okay. Now, as soon as you declare this position, your measurement from the mean position is automatically set to counterclockwise direction. And therefore, whether you like it or not, the counterclockwise direction is now declared as the positive direction of rotation, and clockwise direction of rotation is declared as the negative direction of rotation. So all the rotational entities, what are the rotational entities that you can actually encounter in a rotational problem like this? Theta, displacement is rotational. Angular velocity omega, that is rotational. Angular acceleration, that is rotational. So all the rotational quantities, okay, and instead of force, you will get torque or moment. So these are all the rotational quantities which have a characteristic of being whether anti-clockwise or clockwise, whether they are anti-clockwise or clockwise. So if any of these quantities while you are doing your computations, you find that they are anti-clockwise in nature, then you will put a positive sign on it. And in your course of computations, if you find that any of these quantities that I named out, angular displacement theta, angular velocity omega, angular acceleration alpha, moment, torque, all these quantities which are rotational in nature, if any of this is found to be clockwise, then you will take it as a negative quantity. Okay. Now, eventually what we have to do is we have to find the time period of this simple pendulum. Or rather, you can say that your aim is to find the value of omega n. Just as you found out the value of omega n for spring mass system, it came out to be under root k by m. Now we are going to find the value of omega n. Now, since this is a rotational system, first of all, I will state Newton's law of motion. Newton's law of motion for rotational motion goes like this. Instead of mass, I will take moment of inertia. Instead of acceleration, I will take angular acceleration alpha. So mass into acceleration was replaced by inertia into angular acceleration, and this must be equal to the summation of all. Instead of forces, I will write moments. So this is the statement of Newton's law for rotational motion. Now let me see. I, alpha, and all the moments, they have to be taken with respect to certain stationary point. So the point that I'm going to choose is the hinge point at which the simple pendulum was suspended. तो इसी पॉइंट को मैं स्टेशनरी पॉइंट मान रहा हूं जिसके अबाउट मैं ये सारी रोटेशनल क्वांटिटीज निकालूंगा, क्योंकि भाई रोटेशन की कभी भी बात आती है तो आप ये समझना रोटेशन किसी पॉइंट के अबाउट हो रहा होगा। आपको अगर मैं ये कहूं कि भाई ये अभी मैंने ब्लैंक शीट दिखा दिया, आपको बोला कि इसमें एक रोटेशनल मोशन बना के दिखाओ, तो अब पहला क्वेश्चन तो ये आएगा ना, रोटेशनल मोशन किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन दिखाऊंगा तब ये हो गया मेरा रोटेशन, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन दिखाऊंगा तो ये हो गया रोटेशन। सो रोटेशन ऑलवेज हैज टू बी विद रेस्पेक्ट टू सम पॉइंट ऑफ रेफरेंस। So that is why whenever we talk about any rotational quantity, whether it be a moment, whether it be angular acceleration, or even if it is moment of inertia, all these quantities are rotational quantities. So they have to be specified with respect to some point. So that is what I'm going to do. I'm going to take all these quantities with respect to O. और O चूज करने के पीछे मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन भी है, क्योंकि मेरा रोटेशन मोशन जो हो रहा है सिंपल पेंडुलम का, ये जो आर्क बन रहा है ये खुद ही आपके ओ पॉइंट के अबाउट हो रहा है। सो इट ऑलरेडी supports our case of selecting O as the point. So I am going to replace my statement of Newton's law by correcting it a little bit further. तो I लिखने की जगह मैं I suffix O लिखूंगा,
What is the meaning of this? That is moment of inertia measured about point O multiplied by angular acceleration about O is equal to summation of all the moments which are calculated about point O. ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि ये सारी क्वांटिटीज को अपन इसमें कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सबसे पहले तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल थीटा है. So if displacement variable is theta, so that means angular velocity must be equal to d theta by dt and angular acceleration alpha must be equal to d2 theta by dt square. तो पहला रिप्लेसमेंट आप अपने इक्वेशन में ये करें रोटेशन का कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा नॉट को अब मैं क्या लिख सकता हूं, आई नॉट को तो अभी छोड़ो, अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया है, मल्टीप्लाइड बाय d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर. So this is my statement of Newton's law for simple pendulum. बाकी चीजें अभी आ रही है एक एक करके. अब अपन आई नॉट देखते हैं. आई नॉट का मतलब है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें किस किस चीज का हो सकता है ये देख के बताओ. आपके सिस्टम में एक तो धागा है और एक तो मास है पेंडुलम का. तो किस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, धागे का और मास का दोनों का निकलेगा या सिर्फ मास का निकलेगा? आप बताइए, एनीबॉडी, किस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा? बताइए भाई, एनीबॉडी. पन्ना धनराव, सुन रहे हैं क्या आप? यस सर. बताओ बेटा, किस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा? सर मास का. सिर्फ मास का निकलेगा, बिकॉज द थ्रेड ऑफ सिंपल पेंडुलम is considered to be massless. Now, you tell me what is the moment of inertia of a point mass. अपन पेंडुलम को पॉइंट मास मानते हैं. What is the moment of inertia of a point mass executing circular orbit or circular arc motion at a constant distance of L from point O? तो m मास का O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आप बताओ. और पन्ना धनराव के अलावा और किसी को आता है? दे कैन ऑल्सो टेल मी द आंसर. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पेंडुलम मास अबाउट पॉइंट ओ? अच्छा चलो, इस क्वेश्चन के आंसर से पहले एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं. एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट एक छोटा सा मास पार्टिकल m सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है, द ऑर्बिट ऑफ मोशन हैज अ रेडियस ऑफ r. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m अबाउट दिस एक्सिस? इसका आंसर बता दो. किसी को नहीं आता? वेरी बैड. It will be mr square. Moment of inertia का concept ये है. It is the, for masses, the moment of inertia is the second moment of mass. और moment of mass कैसे निकालोगे? Mass multiplied by distance from any given axis. तो आपके सिंपल पेंडुलम के केस में एक्सिस तो ये रही, ये एक एक्सिस है, यहां पर आपने धागा लटका रखा था और आपका धागा जो है वो ऐसे ऑसिलेट, धागे के अबाउट आपका पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है, तो आप इस एक्सिस के अबाउट अगर देखें तो पेंडुलम का मास जो है इट इज ऑलवेज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एल. इस केस, इस फिगर में एक्सिस आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि एक्सिस जो है ओ पॉइंट से सीधे आपके आंखों के अंदर को घुस रही है. यानी कि the axis in this figure is perpendicular to the figure itself, passing through point O. But from this description, you can
कंसिडर कि ये L डिस्टेंस जो है थ्रेड, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O. So tell me now, what is the mass moment of inertia of M about O? बताओ। हाँ नीरज बताओ। ml² डिस्टेंस हमारा ml², बिल्कुल करेक्ट, बस सिंपल सा है आंसर, ml² होगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर. सो नाउ व्हाट वी हैव हियर is something with which we can replace the value of I naught. अपने को I naught की वैल्यू चाहिए थी, तो I naught आपका हो जाएगा ml². d2 theta upon dt square stays the same. अब अपन आते हैं समेशन ऑफ m naught पे. m naught मतलब मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम कैलकुलेटेड अबाउट पॉइंट O. अब देखें इस सिस्टम में कौन कौन सी फोर्सेस हैं. पहली फोर्स तो है mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स. दूसरी फोर्स है द टेंशन इन द थ्रेड एक्टिंग टुवर्ड्स द पॉइंट O. ये दो फोर्सेस हैं और कोई फोर्स नहीं है सिंपल पेंडुलम के सिस्टम के अंदर. अब आपको क्या करना है, आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि I इंटू एल्फा के प्रोडक्ट को सम ऑफ मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम के बराबर रखा जाए, और मोमेंट्स निकाली जाती है फोर्सेस की, और आपने देखा कि दो फोर्सेस हैं. तो अब आपको इंडिकेशन मिल गया कि मेरे को दो मोमेंट्स निकालने हैं. पहला मोमेंट तो निकालना है टी फोर्स का, यानी कि टेंशन फोर्स का O पॉइंट के अबाउट, और दूसरा मोमेंट निकालना है mg फोर्स का O पॉइंट के अबाउट. अब मोमेंट्स की खास बात ये होती है, किसी भी फोर्स और मोमेंट के रिलेशन की बात ऐसी होती है, ये देखो, देयर इज अ पॉइंट लेट अस से A, और एक फोर्स जा रही है यहां से, ठीक है, लेट अस से F. You have to find the perpendicular distance from this point dropped on the force vector. Let us say this distance is d. Then you say that the moment of the force about point A is equal to F into d. ठीक है, अब आपने पॉइंट A तो वहीं रखा. Now you took another force. ये यूं जा रही है. Once again what you have to do is you drop a perpendicular, find the distance, let us say d1. This is another force F1. So now the moment of force F1 about point A is equal to F1 into d1. Point is here, the force is here. अब आप बोलोगे अरे अब इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर कैसे डालूं, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू एक्सटेंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, विच एवर वे इज मोर कन्वीनियंट. अपन को इस केस में बैकवर्ड ज्यादा जरूरी था. क्यों? इतना एक्सटेंड करो कि पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सके उस लाइन ऑफ एक्शन पे. एंड नाउ यू टेक दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो आपका फोर्स वेक्टर एक्चुअली पॉइंट के नीचे या आसपास नहीं था, वो थोड़ा दूरी पे था, कोई दिक्कत नहीं है. आप उसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड करो और उस लाइन ऑफ एक्शन पे ड्रॉप करो. सो नाउ यू हैव ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर डी, एंड नाउ वंस अगेन यू क्लेम that the moment of this force about point A is F into D. और अब बात आती है कि whether the moment of the force is positive or negative. और आप अपने प्रॉब्लम की शुरुआत में ही डायरेक्शन ऑफ एनी रोटेशनल एंटिटी का साइन पहले से ही निर्धारित कर चुके हो. आपने पहले ही कह दिया कि अगर कोई भी चीज रोटेशनल एंटी क्लॉकवाइज दिखी तो मैं उसको पॉजिटिव करार दूंगा, और अगर कोई भी चीज मेरे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हुई दिखी तो मैं उसको नेगेटिव डिक्लेयर कर दूंगा. ये चीज आपने पहले डिक्लेयर कर दिया है. एंड नाउ लुक एट दिस फिगर. सिंपल, पहले इस फिगर को देख करके मेरे को ये बताओ, ये F इंटू डी का जो मोमेंट है, ये पॉजिटिव मोमेंट है या नेगेटिव मोमेंट है? एनीबॉडी? पॉजिटिव. ये पॉजिटिव मोमेंट इसीलिए है, करेक्ट आंसर दिया आपने. इसका मैंने आपको ट्रिक सिखाया था
कि जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाला जा रहा है उस पॉइंट से आपके फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे एक इमेजिनरी डिस्क बनाया जाए और देखा जाए कि अगर इधर से इसको फोर्स को इस डायरेक्शन में मैं चलाऊं जिस दिशा में चल रहा है तो ये डिस्क किस डायरेक्शन में घूमेगी। तो ये साफ बात है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो इससे हमने ये अंदाजा लगाया कि ये जो मोमेंट है F इंटू डी, दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड देयरफॉर इट हैज टू बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव फॉर दिस प्रॉब्लम ओनली। अगर किसी दूसरी प्रॉब्लम में आपका साइन कन्वेंशन आपने ऐसा सेट कर दिया कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सब आपकी नेगेटिव आ रही है तो फिर आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। But for our problem, in which we have already decided that all moments and all rotary entities are going to be treated as positive if they are anti-clockwise, तो इसीलिए अब अपन इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। अब अपन देखें, चलो अपने को सारी चीजें समझ में आ गई। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। ये मेरा पॉइंट है ए और फोर्स वेक्टर जो है वो इस पॉइंट के अंदर से ही पास हो गया। What is the moment of this force about point A? बताइए, anybody? जीरो। It will be zero, क्योंकि अब की बार आप पॉइंट A से F वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ही नहीं सकते क्योंकि पॉइंट फोर्स के अंदर से ही पास हो रहा है, ठीक है, या फोर्स पॉइंट के अंदर से पास हो रही है। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज जीरो। सो इन एनी इंस्टेंस व्हेन यू सी दैट द मोमेंट अबाउट विच the point about which you are calculating moments, if a force is passing through the point itself, then the moment of that force will be zero in that condition. तो अब अपन को एक इंफॉर्मेशन और मिल गई है। अब अपन तैयार हैं अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पे वापस जाने के लिए। थोड़ी सी मोमेंट्स की भी रिवीजन हो गई आपकी। Okay, so this is what we have to do. We have to take the summation of moments of all the forces about point O. अब मेरे को दो फोर्सेस दिख रही है, एक तो टेंशन की फोर्स दिख रही है, एक mg दिख रही है। इनमें से एक का मोमेंट जीरो होगा। जरा जल्दी से बता दो किसका जीरो होगा। टेंशन का। टेंशन का मोमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि टेंशन की जो फोर्स है वो सीधे O में से पास हो रही है। हाँ, और कोई डाउट है क्या किसी को? क्या बोल रहे हो आप? Somebody was speaking. चलो ठीक है। तो आपके टेंशन का मोमेंट तो हो गया जीरो। अब एक ही फोर्स बची mg। mg का मोमेंट ओ पॉइंट के अबाउट कैसे निकले? अब देखो, एक फिगर अलग से बनाता हूं। ओ पॉइंट इज हियर, mg इज हियर। You know that this length is L. How will you calculate the moment? बताइए। This is theta. ये है सिचुएशन आपके mg की और O पॉइंट ऊपर है। How do you calculate the moment of mg about O? सर परपेंडिकुलर ले लेंगे ना सर इससे। परपेंडिकुलर लेने के लिए आपको इसका लाइन ऑफ एक्शन पहले एक्सटेंड करना पड़ेगा, राइट? यस सर। ठीक है, और फिर O पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अब मेरे को जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री लगा करके आप बताइए कि ये जो डिस्टेंस d है ये कितना है? L sin theta. This is L sin theta. How? Because this angle will also be equal to theta because this line and this line are parallel to each other. ये दोनों parallel lines हैं और ये L length है, तो ये थीटा हो गई। और अगर आप ये d डिस्टेंस निकालें और अगर ये L है और ये थीटा है तो d जो होगा that will definitely be equal to L sin theta. अब मेरे को बताओ, if mg is the force and the perpendicular distance is L sin theta, what is the value of moment about O? Moment about it will be equal to mg force multiplied by distance, that is L sin theta. अब ये भी बताओ, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। It is a negative moment. Why?
Once again, you try to draw a disc-like entity, taking O as the center, और फोर्स आपका नीचे को है, नीचे को फोर्स चलेगी तो आपका डिस्क जो है क्लॉकवाइज घूमेगा, और आपके अभी के फिलहाल के साइन कन्वेंशंस के हिसाब से क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव माना गया है, तो इसीलिए आप इस पे एक माइनस साइन लगाएंगे। तो आपके पास दो फोर्सेस थी, अगर दोनों का मोमेंट निकलता तो आप यहां पर दोनों मोमेंट्स को ऐड करते, लेकिन टी का मोमेंट तो अनफॉर्चुनेटली 0 हो गया, तो सिर्फ एक ही फोर्स रह गई mg, उसका आपने मोमेंट निकाला और आपने अपने इक्वेशन में रख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करने का है, यू ब्रिंग दिस क्वांटिटी टू द लेफ्ट हैंड साइड सो दैट यू गेट राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। अपन अपने स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा मिलता जुलता इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। So you get ml square d2 theta upon dt square plus mgl sin theta equal to 0। अब एक काम कर सकते हैं, इसमें से कॉमन चीजों को कैंसिल कर दो, क्या बच गया, m से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, m खत्म हो जाएगा, l से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, यहां पे l चला गया, यहां पर स्क्वायर का l चला गया, अब l से एक और बार डिवाइड कर दो इक्वेशन को। So eventually what you are left with is d2 theta upon dt square। ये हमेशा कोशिश करनी है कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इसका कोई कोएफिशिएंट ना रहे, तो l से और डिवाइड कर दिया, so I get plus g by l sin theta equal to 0। बन गई मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इतना ही है। I applied Newton's second law once again using the rotational coordinates। तो rotational coordinates में फोर्सेस की जगह मोमेंट्स आ गए, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, और मास की जगह मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो जो भी था उससे मेरी इक्वेशन ये बनी। नाउ आई विल ब्रिंग इन द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा n का स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कंपेयर करना है अपने को, तो कंपेयर करके मेरे को बता दो भाई, आपकी सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। इज इट सिंपल हार्मोनिक और नॉट, यू गिव मी अ डिसीजन। Yes, sir. है सर। अच्छा देखें, है एक बार सर। कंपेयर करें, राइट साइड में दोनों 0 है, बिल्कुल बढ़िया बात। लेफ्ट साइड में d2 थीटा बाय dt स्क्वायर दोनों जगह पर है, लेकिन यहां थीटा की जगह साइन थीटा है, फिर ये कैसे आपने बराबर कर दिया। मेरा तो निष्कर्ष ये है कि दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दिस इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, बिकॉज आई नीडेड थीटा हियर। यहां मुझे साइन थीटा नहीं चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कुछ भी आ जाए तो गए काम से, आपको साइन कॉस टैन रखना ही नहीं। यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो यहां सिर्फ थीटा ही बैठेगा, नो साइन कॉस टैन। So this is not a differential equation of simple harmonic motion। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये साइन थीटा के आ जाने के कारण बन गई नॉन लीनियर, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें चूंकि साइन कॉस टैन कुछ भी नहीं है और इसमें कोई हायर पावर्स भी नहीं है थीटा की, तो ये तो हो गई लीनियर। इन दोनों इक्वेशंस में दुनिया जहां का फर्क है, दे आर नॉट एट ऑल सेम। इसको तो कहीं आप मतलब ये है जैसे एक अफ्रीका से है एक अमेरिका से है, इस तरह का डिफरेंस है इन दोनों में, इतना ज्यादा डिफरेंस है। आप तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, बोले कि हमको तो एक ही लग रहे हैं ये दोनों, दे आर नॉट एट ऑल सेम, बट देयर इज अ ट्रिक दैट वी कैन अप्लाई। अब हम यहां पर ये बात कर रहे हैं कि भाई आप चलो एक काम करो, सिंपल पेंडुलम को ऐसे चलाओ कि ये थीटा बहुत छोटा सा हो। So now you are taking this theta such a small value that it is almost equal to 0. Now if this is the condition of oscillation of a pendulum, in that case you can say that when theta tends to 0, then we have sin theta tends to, बताइए क्या, थीटा। Theta. theta।
0 नहीं, थीटा। तो फॉर वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स ऑफ ऑसिलेशन साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड विथ थीटा। तो अब अपन अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने गलत नहीं बनाई है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो सही है अपनी, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम इसको, हमारी जिद है एक तरह से, ये मान लो कि यार हम इसको सिंपल हार्मोनिक देखना चाहते हैं। तो ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी आपको, इस साइन थीटा की जगह ये साइन हट जाए तो हो जाएगी ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। सो नाउ यू मेक अ स्टेटमेंट, let theta be very small such that it is tending to 0. Therefore, sin theta is nearly equal to theta. And now your differential equation becomes, instead of sin theta, you simply write theta. अब ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन कंपेरेबल हो गई, नाउ दे आर सेम। अब देखो 0 0 चेक्स आउट ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, d to theta चेक्स आउट, पॉजिटिव साइन चेक्स आउट, थीटा थीटा चेक्स आउट। नाउ यू कैन कॉन्फिडेंटली से कि मेरी ओमेगा एन कितनी है ओमेगा एन, बताइए, कंपेयर करके बताओ। अंडर रूट जी बाई एल। इट इज अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल। ठीक है, अब अगर आपका ओमेगा एन, देखो आंसर तो आ गया अपना, अपन का सॉल्यूशन इज वी हैड टू फाइंड ओमेगा एन, अंडर रूट जी बाई एल निकाल लिया। अब मेरे को जल्दी से कोई बता सकता है टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं पेंडुलम का इस इक्वेशन से? एक हिंट देता हूं, दिस इज योर y हिंट। से मल्टीप्लाई कर। टाइम पीरियड क्या होगा बताइए? एफ एन क्या है बताओ? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब तो बता दो। तो 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। एल बाई जी, एल बाई जी होगा ना, बट टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी थोड़ी पूछ रहे हैं, यस सर। है ना? सो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये चीज तो आप लोग अपने स्कूल टाइम से रटते आए हैं, बट नाउ यू नो हाउ द स्टोरी एक्चुअली अनफोल्ड्स। तो आपने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन एक्चुअली तो साइन थीटा में बनती है, जो कि सिंपल हार्मोनिक नहीं है। तो आप सिंपल हार्मोनिक बनाने के लिए क्या करते हो, उसको, उसका थीटा इतना छोटा कर देते हो कि साइन थीटा थीटा के अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाए। दिस इज व्हाट यू डू। ठीक है, आपको समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड हाउ वी डिराइव्ड द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम? यस सर। Now we move on to the next topic, एनर्जी मेथड। तो अपन ने न्यूटन्स लॉ से करना सीख लिया है, सिंपल एक सिस्टम का, दो सिस्टम का न्यूटन्स लॉ लगा लिया, रोटेशन में न्यूटन लॉ लगा लिया और लीनियर मोशन में न्यूटन्स लॉ लगा लिया। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू फाइंड द सेम थिंग दैट वी फाउंड आउट यूजिंग न्यूटन्स लॉ। क्योंकि आपको यह बताया गया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप तीन तरीके से बना सकते हो, और वो तीन तरीके कौन कौन से हैं, और ये भी कहा था कि वो तीनों तरीके आपको रटे हुए भी होने चाहिए। लेट अस सी, इसमें कहीं पे तो दिया था मैंने आपको, ये रहा, न्यूटन सेकेंड लॉ, डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल एंड एनर्जी मेथड। इन तीनों से आपको निकालना आना चाहिए। तो अपन ने न्यूटन्स लॉ तो कवर कर लिया है, और अपन को समझ में आ गया है कि न्यूटन्स लॉ से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। पहले एक रैंडम पोजीशन ली जाती है, फिर रैंडम पोजीशन पे आप न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाते हो और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, उसको स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं और ओमेगा एन निकाल लेते हैं। दिस इज हाउ वी डू इट। ठीक है, नाउ वी कम टू एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड के अंदर सिंपल फंडा क्या है पहले ये समझते हैं अपन। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड एनर्जी मेथड? भाई वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन ऑफ अ पार्टिकल, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो मतलब ऑब्जेक्ट में मोशन है, तो मोशन करते टाइम ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है। ठीक है,
और अगर स्प्रिंग वगैरह है तो कभी स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, कभी स्प्रिंग अनकंप्रेस हो रहा है. So in general, you can see that there are a lot of types of energies involved which are changing their magnitude. For example, let us take the spring mass system. अभी ये शांति से बैठा है अपनी जगह पे, ठीक है, अभी चल नहीं रहा. तो आप क्या करोगे, आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन डिक्लेयर कर दोगे, बोलोगे कि अब यहां पर इक्विलिब्रियम है साहब, द डेटम लेवल, ठीक है. If it is not moving, what is the kinetic energy of the system? बताइए. If it is not moving, what is kinetic energy? Zero. भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर. जब नॉट मूविंग है तो वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो. जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये शर्तिया रूप से जीरो होगी इफ इट इज नॉट मूविंग. ओके, बट while your spring mass system is vibrating up and down, तब हर जगह पे इसमें मोशन है, दो जगह पे इसमें मोशन नहीं है. कहां कहां पे मोशन नहीं है, ये मास जो है अपने टॉप मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुक जाता है, फिर नीचे को एक्सेलरेट होता है. नीचे जाते टाइम मीन पोजीशन पे रुक नहीं पाता क्योंकि इनर्शिया है मास में, तो इसीलिए बिना रुके नीचे को और जाता है और डाउनवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन में जाकर के फिर एक बार रुकता है, फिर यहां से ऊपर को एक्सेलरेट होता है और इस तरीके से ऊपर नीचे ये ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है. सो देयर आर टू इंस्टेंसेस, इंस्टेंस नंबर 1 एंड इंस्टेंस नंबर 2 व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास इज जीरो. अब आप मेरे को बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होगी, विच लोकेशन हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर मास? मेन सर पोजीशन 1 पॉइंट पे. एट द मीन पोजीशन 1 पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि उधर जाकर के मास रुक रहा है. सेकंड पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि यहां पे भी मास आकर के रुक रही है. मास की मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पर है, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. भाई अपन को मैकेनिकल एनर्जीज के बारे में सारा डिस्कशन करना है, तो एक टाइप ऑफ मेन मैकेनिकल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी है विच इज पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. तो अगर उस बॉडी में किसी भी प्रकार का मोशन होगा तब तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या कहना है आपका? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने ये सीखा है कि एक लेवल को डेटम लेवल डिक्लेयर किया जाता है पहले. डेटम का मतलब एट द डेटम लेवल द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी इज कंसिडर्ड एज जीरो. इसको मानना पड़ता है क्योंकि हर जगह पे पोटेंशियल एनर्जी है. अगर आप धरती के सतह पर भी खड़े हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. क्यों? क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अर्थ के सेंटर से नापी जा रही है, ठीक है. तो आप अर्थ के सेंटर पे चले जाओ तो तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी जीरो मानी जाएगी. तो आप अपने धरती के ऊपर खड़े होकर कितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर लो, आप उसके डेटम लेवल को जीरो बोल ही नहीं सकते. So what we have to do is we have to assume a datum level at which potential energy of gravitation is zero, and with comparison to that you say कि अगर डेटम से कोई चीज ऊपर खड़ी है तब तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर डेटम से कोई चीज नीचे खड़ी है तब तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन is one type of potential energy which can either be positive or negative. काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब देखो, मास कभी ऊपर को जा रही है कभी नीचे को जा रही है, तो दोनों डायरेक्शन में चल रही है मास. तो क्या काइनेटिक एनर्जी नीचे आते टाइम नेगेटिव और ऊपर जाते टाइम पॉजिटिव, कहीं ऐसा तो नहीं है? आपको क्या लगता है? What is your opinion about kinetic energy? Because velocity is a vector, ठीक है. Downward velocity may be or may not be depending on your sign convention. भाई या तो ऊपर की वेलोसिटी या नीचे की वेलोसिटी, कोई एक वेलोसिटी तो नेगेटिव माननी पड़ेगी ना कभी आपको.
तो अब इसको लेकर के बताओ, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपका v चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसका स्क्वायर करने पे तो हमेशा पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? यस क्लियर सर। हुआ? सो Yes. दिस इज द रीजन व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये याद रखना। Potential energy due to gravitation is positive or negative depending on whether you are standing above the datum or you are standing below the datum. ठीक है? अब एक दूसरी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको बताता हूं, जो कि कभी कभी पिक्चर में आती है। जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम के केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, भाई आपने एक स्प्रिंग को दबा के पकड़ा है, तो क्या उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हुई? क्या आप बताओ, स्टोर होती है कि नहीं होती है? होगी सर। होती है होगी। सर। उस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पता है क्या आपको? आई हैव अ स्प्रिंग विच आई एम होल्डिंग compressed by compressing it by a length x. The spring constant is k. यानी कि ये जो डॉटेड लाइन है, अगर मैंने इसको दबाया नहीं होता स्प्रिंग को, तो ये स्प्रिंग ओरिजिनली आराम से खुली खुली इतर तक बैठी होती। लेकिन अब मैंने कुछ फोर्स लगा करके x डिस्टेंस से इसको अंदर को दबा के पकड़ के रखा हुआ है। पकड़ के रखा हुआ है इसका मतलब है जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये स्प्रिंग उछल के बाहर को आएगी। सो बाय दिस पिक्चर इटसेल्फ यू कैन से दैट potential energy stored in the spring. Can you tell me the value of potential energy using the parameters k and x? कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? अगर आपको सर नहीं हाफ ऑफ क्यूएक्स स्क्वायर। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये कौन बोला इसका आंसर? हु गेव दिस दिव्यांशु आंसर? सर। दिव्यांशु, वेरी गुड। This is the correct answer. The energy stored in a spring is half of kx square. Now again I ask you one question. स्प्रिंग को अगर मैं खींच के पकड़ूं, भाई ये जो लाइन है ये तो इसकी न्यूट्रल लाइन है, यानी इस पॉइंट पे ना तो दबी हुई है ना खिंची हुई है, लेकिन मैं स्प्रिंग को खींच भी तो सकता हूं इसको x डिस्टेंस से। तो अब मेरे पास दो सिचुएशन आ गई, स्प्रिंग को दबाऊंगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, स्प्रिंग को खींचूंगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब मेरे को सिर्फ ये बता दो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है या नहीं? सर स्प्रिंग की होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। स्प्रिंग की होती है? तो सर क्यू की वैल्यू की चक्कर की इक्वल चेंज हो गई ना। मैं वापस से मैं मैं आपको ये कहूंगा कि x की हालत को जरा देखिए पहले। आप x के ऊपर ही तो होगा ना भाई। x को अगर मैं राइट साइड में ले जा रहा हूं तब तो आप बोलोगे पॉजिटिव है, और x को मैं लेफ्ट साइड में ले जा रहा हूं तब आप बोलोगे नेगेटिव है। लेकिन आप x की पावर देखो, एक्स की जो स्क्वायर है सर। तो हो सकती है क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग नेगेटिव? नहीं सर एक्स से तो नहीं होगी। कभी नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। ठीक है? तो अब आपको क्या क्या सीख लिया आज आपने, कि अपन अब एनर्जी मेथड से सॉल्व करने सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास का तो टाइम खत्म हो गया है, बट फॉर नेक्स्ट क्लास दैट इज टुमारो यू हैव टू कीप इन माइंड कि किसी भी वक्त सिस्टम में आपकी तीन एनर्जीज मैकेनिकल एनर्जी के तौर पे मौजूद हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन फर्स्ट, सेकंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन और वेलोसिटी, एंड थर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये तीन एनर्जीज आपके सिस्टम में जो एसएचएम कर रही हो या मोशन कर रही हो वाइब्रेशन का, उसमें ये तीन एनर्जीज प्रेजेंट हो सकती हैं। और अगर आपके सिस्टम में स्प्रिंग है ही नहीं, तो आपके पास में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन और काइनेटिक एनर्जी ही रह जाएगी। सो दीज आर द केसेस विथ विच वी विल वर्क ऑन एनर्जी प्रिंसिपल। तो आज की क्लास अपन यही स्टॉप करते हैं।
I will take your attendance. Please don't go away.